example of zero order reaction. How is it possible that a reaction like R to P is zero order? Normally we have seen, according to Leach-Trier principle, if you increase concentration of reactant, always it goes in forward direction. But if we say reaction is zero order, that means it's independent of the concentration of reactant. How is that possible? Because if you are bringing any change over here in the concentration of reactant, it does not change the rate of reaction, whether you are increasing the concentration or you are decreasing the concentration. How is that possible? There is a question. कैसे होता है ऐसा? Okay, let me give you very simple example. Suppose ध्यान से समझना, ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल. Okay, किसी एक बंदे का घर यहाँ पे है, उसके अंदर ये उसकी एक वाटर टैंक है. Okay, और ये वाटर टैंक यहाँ पे जो है पानी से नॉर्मली भरी हुई होनी चाहिए, पर उसके अंदर लेकिन पानी बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होने है. अभी उसके घर के सामने एक बड़ी सी वाटर टैंक है. और यहाँ पे एक बड़ी सी वाटर टैंक, आपकी लेटेस्ट डिजाइन है. यहाँ पे ऐसा है कि ये दो टैंक के बीच का ये रास्ता है. अभी ये वाटर टैंक भरनी है बंदे को, ध्यान से ये चीज समझना है. Everything is funny, but it does explain your concept. यहाँ से वो इस तरफ पानी लेके आने के लिए एक कंटेनर यूज कर रहा है, और उसका कंटेनर का साइज ये जरा देखना. वो ये बस इतना कंटेनर लेके जा रहा है. ओके, ज्यादा प्यार हो, और यहाँ से लेके यहाँ पे डाल रहा है, यहाँ से लेके पानी यहाँ पे पूरा ये डाल रहा है. ओके, वो उनकी जिंदगी भर भरता रहेगा, भरने वाला. करेक्ट है ना? इंस्टेड ऑफ दैट he should have taken a proper container like this. बाल्टी लेके गया होता तो बराबर था. करेक्ट है ना? आपको समझ आ रहा है? What am I trying to explain over here? Problem over here is not कि यहाँ पे कितना पानी वो भर सकता है, पूरा टैंक खाली है. Problem was not over here कि यहाँ पे आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कितना है इसके अंदर. पूरा टैंक पानी से भरा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स. यहाँ से यहाँ पे पानी लेके आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे कितना पानी भरना है, काफी सारा भर सकते थे. यहाँ पे काफी सारा पानी अवेलेबल है. प्रॉब्लम वॉज कंटेनर. ये कंटेनर की कैपेसिटी 50 मिलीलीटर है, तो उतना ही ले सकता था. You should have at least container which can contain 5 liters of water or more than that. Then वो 10 बार या 15 से 20 बार में वो पूरा टैंक को भर सकता. So it was not the limitation of the mains capacity. Main could have carried as much as it required. It was not the problem of the availability of water. ये पूरा भरा होता, ये टैंक या आधा भरा होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये खाली होता या नहीं होता, पर प्रॉब्लम किसका था? कंटेनर का. करेक्ट है? ऐसा ही कुछ यहाँ जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल की बात कर रहे थे, I was talking to you this. Example of zero order reaction. For a reaction R to P, how can a rate which is equal to minus dr by dt can be independent of concentration of reactant? How is that possible? It is possible
नॉर्मली जब रिएक्शन होते हैं ये टाइप के, जहाँ पे जैसे कि ये वाला रिएक्शन है हमारे पास, ओके, लेट्स से क्या NH3 gas is getting decomposed. From this type of reaction, particularly gaseous reaction, they are heterogeneous reaction. What I mean by heterogeneous, normally they take place in the presence of platinum, palladium, like those catalysts. And catalysts are solid. Reaction is like this. You have a plate of platinum or palladium. When the reaction takes place, what will happen? Once you release, let's say in this container, let's say NH3 gas को release किया, that NH3 gas first gets adsorbed on the surface of this catalyst. After it gets adsorbed, then slowly converts into N2NH3. See, this gas gets adsorbed, and then one by one, okay, they are going to get converted into reaction. Correct or not? And when they are getting adsorbed again, and again converting into reaction. Are you following this? Now here, understand the problem. The problem was, see, the problem over here is आपके पास कितना NH3 अवेलेबल है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे सपोज ये जो हमारे पास कैटालिस है उसकी कैपेसिटी लेट से 5 मोल NH3 का एब्जॉर्ब करने की है. कितनी कैपेसिटी उसकी? 5 मोल. और अगर आपके पास जो NH3 अवेलेबल है वो 50 मोल, 50 के 50 मोल एक साथ एब्जॉर्ब नहीं होंगे. पहले खाली 5 मोल एब्जॉर्ब होने वाले, 5 मोल एब्जॉर्ब हुए, वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में, सॉरी, एंड प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होने के बाद दूसरे 5 मोल वापस एब्जॉर्ब होने वाले, करेक्ट, एंड देन होंगे. तो अगर आप इसको 5 मोल 50 मोल रखो, 100 मोल्स रखो, 500 मोल्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रखो 2NH3 का, इट्स नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस बिकॉज इसकी कैपेसिटी तो खाली 5 मोल्स ही है. सो रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज विद बाय चेंजिंग दिस कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप कितना भी बढ़ा दो या कम कर दो, कैपेसिटी किसकी है? जो कैटालिस्ट की प्लेट है. रिमेंबर दैट एग्जांपल, इट वाज फनी एग्जांपल बट इट डज मेक यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. ओके, पानी कितना अवेलेबल उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, कितना पानी आपको डालना है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. स्पीड किसके ऊपर डिपेंडेंट था? कंटेनर की कैपेसिटी. ओके, हियर कंटेनर इज योर कैपेसिटी. So it doesn't make any difference आपके पास ये कितना है, आप उसको बढ़ाओ या कम करो, रेट डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, दैट इज कांस्टेंट. इट इज अंडरस्टूड? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गेटिंग, ये पहली चीज. दूसरी चीज, तो आप जब मैं मुझे ये क्वेश्चन पूछूं, सर अगर ये 5 मोल की जगह मेरे पास 2 मोल होगा तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा. अभी मैं 3 मोल करूंगा तो भी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा बिकॉज अभी इसकी कैपेसिटी 5 मोल की है एंड आई एम इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन इन दैट रेंज ऑफ. एट दैट टाइम इसकी कैपेसिटी की रेंज में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो, देन रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस. उस टाइम पे रेट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस. व्हेन आई स्पोकन टू यू अबाउट 2 थिंग्स. फॉर इनिशियल पीरियड, जब तक यहाँ पे पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, दैट इनिशियल पीरियड, इसका रेट फर्स्ट ऑर्डर, उसका रेट कैसा है? बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन. जैसे ही एक बार कैपेसिटी इसकी खत्म हो गई, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, फिर कितना भी बढ़ा दो फर्क नहीं पड़ता, देन इट बिकम्स 0. दैट्स व्हाट इट्स रिटन ओवर हियर. अगर आप शांति से इसको पढ़ाई करो, ठीक है? Zero order reactions are mostly found in heterogeneous reaction, that is adsorption of adsorbent on the surface of the adsorbent. थोड़े सा वर्ड्स में सिखा दे तो हम चैप्टर 2 के अंदर पढ़ाई करेंगे. एड्सॉर्प्शन आपको पता है सरफेस पे जो होता है ऑफ एड्सॉर्बेंट हमारा अमोनिया गैस था जो अभी मैंने आपको पढ़ाया. जो एड्सॉर्ब होता है उसको हम एड्सॉर्बेंट बोलते हैं.
और जिसके पर होता है उसको एड्सोबेट बोलते हैं. जहां कैटालिस्ट हमारा एड्सोबेट, कैटालिस्ट हमारा क्या था? एड्सोबेट. The adsorption reaction of the fraction of the surface of the catalyst occupied is proportional to concentration. So initially it becomes first order reaction. Initially जो adsorption है वो कितना हो रहा है? Initially is first order reaction. But the situation does not change with more and more adsorption. So it becomes independent of concentration. That is, it becomes zero order reaction. So the language they are using tough one. I say very easily. इनिशियली जब तक कॉन्सेंट्रेशन आपका पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है तब फर्स्ट ऑर्डर है, बाद में वो क्या बनता है? सेकंड. इसीलिए द एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया गैस इन द सरफेस ऑफ द फाइनली डिवाइडेड निकल कैटालिस्ट इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस. मतलब नॉर्मली फिर अमोनिया गैस की बात करें, बोलते हैं अमोनिया गैस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? प्रेशर होता है. हाई प्रेशर पे मोर कॉन्सेंट्रेशन होता है. The surface is completely covered, so it becomes zero. जब प्रेशर हाई है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तब सरफेस कंप्लीटली कवर हो जाती है, इसलिए जीरो ऑर्डर बनता है. एंड उसका रिएक्शन इस तरीके से बनाया जाता है. रेट इक्वल्स टू K1 प्लस NH3 1 प्लस K2 अपॉन NH3. इसमें K1 और K2 की वैल्यू उस तरीके से होती है एट लो प्रेशर. जब प्रेशर लो होता है मतलब कॉन्सेंट्रेशन लो होता है, एट दैट टाइम K2 into NH3 is much less than 1. It is much यहाँ पे ध्यान दीजिए, it is much less than 1. That means 1 plus K2 NH3 क्या हो जाएगा? 1. That means इसकी वैल्यू क्या मिल गया? K1 NH3. मतलब जब लो प्रेशर होता है तब वो कैसा है? फर्स्ट ऑर्डर. जब प्रेशर लो है तब ये वैल्यू. अगर प्रेशर हाई है एट हाई प्रेशर, K2 की वैल्यू ऐसी होती है, K2 into NH3 इज मच हायर देन 1 बन जाता है. मतलब 1 प्लस K2 NH3 आपको मिलेगा K2 NH3. 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस. तो इसका आंसर आपको मिलेगा K1 NH3 upon K2 NH3. NH3 cancel. K1 by K2 which is equal to K. That is 0. So at low pressure it is first order and at high pressure it is zero order. That's what is written over here. देखो यहाँ पे वही लिखा है. Correct or not? Are you following this? So now,